अस्सलाम वालेकुम क्लास and students. This is our जो है वो second lecture of the pituitary gland, which basically based on the posterior pituitary. In the previous lecture, we study the hormones of anterior pituitary and their actions. In this lecture, we will study the hormones of posterior pituitary and their actions. Posterior pituitary hormones are basically synthesized in the hypothalamus. In the hypothalamus, meganocellular neurons basically secrete the hormones which are neurohormones ADH and oxytocin. So the hormones of the posterior pituitary, ADH and oxytocin, which is synthesized in the hypothalamus, are travel and transported through the hypothalamo-hypophyseal tract and reach in the posterior pituitary and stored in the posterior pituitary, and then released is controlled by neuroendocrine reflexes. Then the neuroendocrine reflexes will reach in the hypothalamus. So these hormones are secreted from the hypothalamus and stored in the posterior pituitary, and through the posterior pituitary, these through blood they reach to the target organ. So here we can see in this diagram there are two type of nucleus in the hypothalamus. Two type of supraoptic nuclei and the paraventricular nuclei. These two nuclei have the neuroendocrine cells. These neuroendocrine cells basically secrete the hormones which is ADH and oxytocin. These hormones then travel into the through the hypophyseal hypoportal system. Through hypophyseal hypoportal system, these two hormones reached up into the posterior pituitary, and in the posterior pituitary these hormones are stored, and then on demand these hormones are secreted from the posterior pituitary into the blood, and in the blood through blood they will reach to the target organ and then perform their function. Now we see what are basically the functions of these hormones. Okay, the first hormone is ADH, which is produced in the hypothalamus, transport through the hypophyseal hypoportal system into the posterior pituitary, and in the posterior pituitary it is transported into the through the blood. It will transport it to the target organ. So chemical nature of the ADH is basically 9 amino acid peptide. Okay, so ADH hormone basically has two actions. First is retention of water, and second is the vasopressor action. Retention of water. We know that ADH will basically act on the kidney proximal tubule. जो किडनी की proximal tubules होती हैं उनकी membranes के ऊपर जाके जो cells होती हैं proximal tubules के cells, उसके ऊपर जाके ADH जो है वो act करता है, ठीक है, और act करता है किसमें, and cause the reabsorption of water. ठीक, so ADH increase the water reabsorption in the tubular epithelial membrane by regulating the water channel proteins. So क्या किडनी के ऊपर प्रोक्सिमल जो है वो ट्यूब्यूल्स की वॉल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करेगा, वाटर की जितने भी सेल्स, उस वॉल के जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में जितने भी प्रोटीन्स हैं, वाटर चैनल प्रोटीन्स, उनको रेगुलेट करेगा, ठीक है, which is also water channel proteins is also known as aquaporin through the V2 receptor. That means कि on the proximal tubules की जितनी भी वॉल्स हैं, उनकी जितनी भी सेल्स हैं, उनके ऊपर क्या होती हैं, एक्वा प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती हैं. इन एक्वा प्रोटीन के ऊपर V2 रिसेप्टर्स होते हैं. So ADH hormone will attach to the V2 receptor, regulate the water channel proteins, and cause the reabsorption of water from the proximal convoluted tubule back into the blood, okay, back into the cell, and through the cell these water is reabsorbed into the blood. So what will be the function of the ADH? First function is the retention of water. The second function is the vasopressor action. Vasopressor action is basically done on the vessel. Vessel
What type of vessel? These type of vessel will be the blood vessels. Okay. Blood vessels say it will cause the vasoconstriction, and the constriction and increase the blood pressure. ओके, सो दूसरा एक्शन अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? वेजो प्रेशर एक्शन। एडीएच क्या करता है? वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। वेसल्स की, जितनी भी ब्लड की वेसल्स होती हैं उन्हें वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रक्शन करने के साथ क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को। ओके, सो द ओस्मो रिसेप्टर। अब हम इसका इस डायग्राम में, हम इसका जो है वो एक्शन देखेंगे। इसके एक्शन में हम क्या देखते हैं? ओस्मो रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओस्मो रिसेप्टर बेसिकली जो है वो प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, एंड बैरो रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं एओर्टिक आर्च में और कैरोटिक साइनस में। और ये ब्लड के प्रेशर को जो है वो बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, और ओस्मो रिसेप्टर ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस अगर हमने देखा होगा कि एक मेम्ब्रेन में जो है वो कंसंट्रेशन का फ्लूइड सॉल्वेंट का जितना भी प्रेशर, फ्लूइड सॉल्वेंट का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। दैट मीन के हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक। व्हेन द अब अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो है वो क्या हो गई है, ब्लड के अंदर जो है ये वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या होगा? हमारा क्या होगा? बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें क्या होगा? कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। दैट मीन ऑस्मोटिक का सोल्यूट जो है वो सोल्यूट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। दैट मीन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया। ठीक, हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए ताकि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करे? डिक्रीज करे। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, हमारी ब्लड में जो है वो सोल्यूट का लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो सोल्यूट का लेवल जो है वो इंक्रीज करने से हमारा क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेसिकली डिटेक्टेड बाय द osmoreceptor which are present in the hypothalamus. These osmoreceptors then cause the hypothalamus to secrete the ADH, and this ADH is basically secreted from the hypothalamus and stored in the posterior pituitary, and through the posterior pituitary this ADH is released in a sequence form through the blood. It will reach up to the kidney, and in the kidney it will cause the reabsorption of water, and reabsorption of जो है वो water will also जो है वो increase the blood volume. Okay, increase the blood volume. That means के increase in the water reabsorption. Okay, और इसी तरह से जो बैरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, वो बैरो रिसेप्टर क्या कर रहे होते हैं? वो बेसिकली डिटेक्ट कर रहे होते हैं किस चीज को? हमारे ब्लड के प्रेशर को। अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है तो बैरो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। ये बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर अपने कुछ सिग्नल्स भेजते हैं किसमें? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो है बैरो रिसेप्टर जो है वो एओर्टिक और कैरोटिड साइनस में baroreceptor डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को और send the signals away to the hypothalamus, and this hypothalamus will secrete the ADH, and this ADH then will act on the blood vessels and cause the constriction of the blood vessels. When the constriction of the blood vessel will increase, it will increase in the blood pressure. So our blood volume will increase, our blood pressure will increase through the ADH. ओके, तो हमने इस स्लाइड के अंदर इस चीज को देखा है कि किस तरह से ओस्मो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर कितने भी सेंसेस जो है वो हाइपोथैलेमस में जाते हैं, और हाइपोथैलेमस जो है वो एडीएच की सिक्रीशन करता है, और एडीएच जो है वो किडनी के ऊपर एक्ट करता है, किडनी की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के ऊपर। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो है वो वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह से जो बैरो रिसेप्टर हमारे एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस में होते हैं, वो ब्लड के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, वो सिग्नल्स भेजते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन जो है वो एडीएच को सीक्रेट करते हैं, और एडीएच क्या करता है? वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कराता है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है? ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर सकता है। हमने फिजिक्स की टर्म में भी पढ़ा था कि जैसे ही पाइप में
पाइप का वॉल्यूम को अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो वहां से फ्लूइड जो है वो तेजी से गुजरेगा, जैसे ही फ्लूइड तेजी से गुजरेगा डेट मीन वहां पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने एडीएच की जो है वो सिक्रीशन को देखा कि वो किस तरह से जो है वो रेगुलेट हो रही होती है और किस तरह से वो किडनी पे जाके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएगी और वेसल्स के ऊपर वेसल प्रेशर इफेक्ट जो है वो शो करेगी। इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो ऑस्मो रिसेप्टर का थोड़ा सा एक और मैकेनिज्म जो है वो देख लेते हैं, जिसमें इसका जो है वो हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को देख रहे हैं। नेगेटिव फीडबैक में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है, इसने एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी को जो है वो इंक्रीज कर दिया है। ऑस्मोलैरिटी वही ऑस्मो रिसेप्टर जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद है, उन्होंने ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कर लिया है। एडीएच की सिक्रीशन हो गई है। एडीएच ने जो है वो जाके प्लाज्मा जो है वो लेवल में एडीएच को इंक्रीज करा दिया है। H2 परमिबिलिटी इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो किडनी की जो कलेक्टिंग डक्ट थी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स थी, उसके ऊपर जाके इन्होंने एक्ट किया है, या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाके एडीएच ने एक्ट किया है, वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराई है। जैसे ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो डेफिशिएंट इन H2 एक्सक्रीटेड, तो जो यूरिन एक्सक्रीट होगा या तो उसमें क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी किस चीज की, वाटर की। और ये जो डेफिशिएंसी है ये डिटेक्ट होगी, और ये जो है डेफिशिएंसी एक्सक्रीटेड जो वाटर की है, ये डेफिशिएंसी क्या करेगी, नेगेटिव जो है वो फीडबैक लेके जाएगी। और ओके, व्हेन जो है वो वाटर की तो ये नेगेटिव फीडबैक लेके जा रहे हैं। नेगेटिव मीन में कि वाटर जो है वो डेफिशिएंट हो गया, वाटर डेफिशिएंट हो गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, नेगेटिव जो है वो फीडबैक जो है वो हाइपोथैलेमस में जाएगा, और वो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा कि अब मजीद एडीएच की सिक्रीशन ना की जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो ओस्मो रिसेप्टर का थोड़ा सा हमने जो है वो फंक्शन जो है वो देखा है, ठीक है, और किस तरह से उसका नेगेटिव जो है वो फीडबैक भी जा रहा होता है। Okay, now we are studying the oxytocin. The function of basically the oxytocin is a 9 amino acid जो है वो पेप्टाइड है। 9 अमाइनो एसिड की चेन जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रही होती है, ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो है वो फॉर्मेशन कर रही होती है। ऑक्सीटोसिन इज द सेम जो है वो थ्रू एडीएच, जैसे कि एडीएच की प्रोडक्शन को हमने देखा था कि एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है वो फॉर्म हुआ था। उसके बाद जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन से क्या हुआ, 9 अमाइनो एसिड जो है वो मॉलिक्यूल सेम जो है वो एडीएच की तरह ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट होगा from the hypothalamus and store होगा posterior pituitary में, and from the posterior pituitary it is secreted into the blood. Okay, the function of the oxytocin in females is basically the action on the mammary gland and uterus. When oxytocin cause the ejection of milk from the mammary gland, अगर हम मेमरी ग्लैंड के ऊपर इसका एक्शन देते हैं ऑक्सीटोसिन, तो क्या है, मिल्क की इजेकुलेशन, मिल्क की इजेक्शन कराना, ठीक है। और यूट्रस के ऊपर इसका जो एक्ट है वो क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द यूट्रस एट द बर्थ, ठीक है। एंड these both mechanism are act to the positive feedback. And in the female the release of oxytocin increase during ejaculation. Okay, now I will tell you about what are basically the positive and negative feedback. Positive feedback means if some type of hormone is secreted, then this secretion will also cause the more secretion of the hormone. Okay, दैट मीन कि अगर जो है वो मिल्क की इजेकुलेशन हो, मिल्क की इजेक्शन होती है, तो मिल्क की जैसे ही इजेक्शन होती है तो ये क्या करती है, ये फर्दर जो है वो पॉजिटिव फीडबैक भेजेगी हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस में अब जो मिल्क, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पहले क्या था, जो मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क की इजेकुलेशन में पहले तो रिसेप्टर का जो है वो रोल होता है, ठीक है, पहला फंक्शन रिसेप्टर का होता है। अब जब रिसेप्टर ने अपना रोल प्ले कर दिया तो अब जो है वो रिसेप्टर भी जो है वो सिग्नल भेज रहे हैं, साथ में मिल्क की जो इजेक्शन हुई है वो भी अपने सिग्नल भेजती है, ठीक। अब जो मिल्क की फर्दर प्रोडक्शन हो रही होती है ये भी पॉजिटिव फीडबैक भेज रही होती है हाइपोथैलेमस के, फर्दर ऑक्सीटोसिन की जो है वो प्रोडक्शन करें, ठीक। जब फर्दर ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन होगी तो ये हमारा क्या है कि अब इसमें दो लोगों ने जो है, दो चीजों ने जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं कि एक तो रिसेप्टर जो कि पहले वो एक्टिवेट हुए, और साथ में अब मिल्क की प्रोडक्शन भी जो है वो, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजे हैं कि और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, देन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। जब फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन होगी तो ये फर्दर सेल्स के ऊपर एक्ट करेगी, फर्दर सेल्स के ऊपर एक्ट करने के बाद
फर्दर जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो है वो फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस में, वो मजीद हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो एक क्या है कि एक पॉजिटिव साइकिल बन गया है कि एक चीज ने एक चीज को जो है वो प्रोड्यूस किया है, और उस प्रोडक्शन वाली चीज ने दोबारा से उस जहाँ से हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट किया है, और वो क्या है, एक मैकेनिज्म जो है वो चल रहा है। ठीक, तो ये जो सारा मैकेनिज्म है इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। और अगर नेगेटिव फीडबैक नहीं होगा तो नेगेटिव फीडबैक जैसे हमने देखा कि डेफिशिएंट इन जो है वो वाटर ने पीछे फीडबैक दिया है कि अब जो है वो हमारी वाटर की जो यूरिन के जरिए जो वाटर की एक्सक्रीशन हो रही थी अब वो क्या हो जाएगी, कम हो गई है। तो उसने क्या किया है, उस कम वाली चीज ने पीछे जाके जो है वो क्या किया है कि अब अपनी प्रोडक्शन को आप रोक दें। ठीक, इसको हम मजीद भी जो है वो देखेंगे फर्दर। ओके, अब हम मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स की जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स बेसिकली कौन सी रिफ्लेक्स होती है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू अगर हम देखते हैं तो सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग, जो बेबी जो है वो सक करता है मेमोरी ग्लैंड को, ठीक है, या निपल्स को, तो उसमें क्या होता है, वो एक्टिवेट कर रहा होता है टच के रिसेप्टर्स को। ठीक, जैसे ही टच के रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होंगे, इम्पल्स डिस्चार्ज फ्रॉम द टच रिसेप्टर आर कैरीड बाय द सोमैटिक एफरेंट नर्व। अब यहाँ पर टच रिसेप्टर में एफरेंट नर्व जो है वो, अगर आपने जो है वो हमने एक जैसे एक सोमैटिक एफरेंट नर्व जो है ये प्रेजेंट होती हैं, ये एफरेंट नर्व जो है ये हाइपोथैलेमस की तरफ जो है वो सिग्नल्स को लेके जाती हैं। देन हाइपोथैलेमस अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम टच रिसेप्टर की बात करते हैं, अगर हम किसी चीज को टच करते हैं, ठीक है, दैट विल बी हॉट एंड कोल्ड, तो हमारा हार्ट जो है वो पीछे की तरफ फौरन से हो जाता है। ठीक है, हम अपनी हैंड को क्या करते हैं, बैकवर्ड जो है वो मूव करते हैं। तो ये हमारा जो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है वो सोमैटिक एफरेंट नर्व के फॉर्म में हो रहा है। सोमैटिक एफरेंट नर्व बेसिकली क्या होती है, सोमैटिक एफरेंट नर्व जो है वो हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है, हमारे टच रिसेप्टर में जो है ये प्रेजेंट होती है। ये क्या करती हैं, ये टच रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा, ठीक है, यहाँ से सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस की तरफ, हाइपोथैलेमस से जो है वो फर्दर जो है वो एक्शन करेगा, वो हाइपोथैलेमस जो है वो हमें हमारे माइंड को जो है वो फौरन से कहेगा कि दैट दैट इज डेंजर, देयर इज डेंजर, तो आप क्या करें, अपने हाथ को जो है वो बैकवर्ड मूव कर दें। ठीक, तो ये जो हमारा रिसेप्टर का ये जो हमारा फंक्शन है, ये सोमैटिक जो है वो एफरेंट नर्व के फॉर्म में हो रहा होता है। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले टचिंग आई, टचिंग में हमारे सोमैटिक जो है वो एफरेंट नर्व को एक्टिवेट किया। अब यहाँ से जो है वो सिग्नल जाएंगे सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई हाइपोथैलेमस में। अब वहां से इफेरेंट impulses from the hypothalamus cause the release of oxytocin. अब एफरेंट मीन लेके जाना, इम्पल्सिव सोमैटिक एफरेंट नर्व के थ्रू जो है वो हाइपोथैलेमस में गई है, और हाइपोथैलेमस ने अपना इफरेंट रोल प्ले किया है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इफरेंट होता है वापस लेके आना। ठीक, थ्रू द इफरेंट जो है वो, इफरेंट जो रोल होता है इफरेंट इम्पल्सिस का, वो क्या होता है कि जैसे कि एफरेंट है टुवर्ड द हाइपोथैलेमस, और एफरेंट रोल क्या होगा, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द अदर ऑर्गन। तो ये एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। एफरेंट नर्व्स जो होती हैं वो क्या कह लें कि जो है वो हमारे दिमाग की तरफ या हाइपोथैलेमस में जो है वो क्या लेके जा रही होती हैं, एफरेंट नर्व्स जो है वो मैसेज को लेके जा रही होती हैं, और जो इफरेंट है वो क्या करती हैं, हमारे जो है वो माइंड या हमारे जो हाइपोथैलेमस है या जितने भी हमारे थैलेमस, यहाँ से जो है वो मैसेजेस को क्या कर रही होती हैं, टुवर्ड द बॉडी जो है वो लेके जा रही होती हैं। तो यहाँ पे जो एफरेंट रोल था वो किसका था, एफरेंट रोल जो है वो टच रिसेप्टर्स का था, सोमैटिक एफरेंट नर्व का था, जिन्होंने जो है वो हाइपोथैलेमस की तरफ जो है वो मैसेज को लेके गई हैं, और हाइपोथैलेमस ने जो है वो इफरेंट रोल जो है वो एडीएचसी प्रोडक्शन के फॉर्म में जो है वो किया है। So here what will be what mechanism we are studying, the milk ejection reflex को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास sucking reflex होती है that activate the touch receptor in the mammary gland. These receptor will carry it through the सोमैटिक एफरेंट जो है वो नर्व के थ्रू जो है ये मैसेज को या इम्पल्सिस को लेके जाते हैं, और ये इम्पल्सिस जो है वो हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लाई के ऊपर एक्ट करके हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन कराती हैं, और ये ऑक्सीटोसिन जो है वो बेसिकली रिलीज होता है एंड कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल एंड लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क।
तो कंट्रिक्शन ऑफ द मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ द जो है मायोएपिथेलियल सेल्स करता है और मिल्क की जो है वो प्रोडक्शन करता है. So as this reflex is initiated by the nervous factor and completed by the hormonal action, so it is also known as the neuroendocrine reflex. ये न्यूरॉन के थ्रू ये रिसेप्टर न्यूरॉन्स के थ्रू ये गए और एंडोक्राइन की फॉर्म में इसने अपना एक्शन शो किया है. तो ये क्या है, एक इफरेंट एक्शन शो किया. तो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स इसको हम कहते हैं. तो ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड बाय द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इसमें जो मैकेनिज्म होगा वो पॉजिटिव फीडबैक की फॉर्म में होगा. ऑन द प्रेग्नेंट यूट्रस हमने कहा था कि जो ऑक्सीटोसिन है वो मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, वो जो है वो यूट्रस पे भी एक्ट करता है. So at the onset of labor, the cervix जो है वो dilate and the fetus descend through the birth canal. Okay, receptor in the wall of the cervix are stimulated, which respond by discharge impulses, and impulses are carried to the center by the efferent nerve fiber and center of the supraoptic and paraventricular nuclei in the hypothalamus. जब भी लेबर पेन्स जो है वो स्टार्ट होती हैं तो जो सर्विक्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, डाइलेट करता है. वो जो लेबर है वो किस भी फॉर्म में हो सकते हैं, भी ऑलरेडी कुछ हार्मोन जो है वो सिक्रेट हो रहे हैं. ठीक है, अब वो सर्विक्स जब डाइलेट करता है एंड फीटर डिसेंड थ्रू द बर्थ कैनाल, तो ये जो मैकेनिज्म होता है बर्थ कैनाल से, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किस चीज को, सर्विक्स को. सर्विक्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो लेबर के टाइम के ऊपर क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं. ठीक है, और कुछ इम्पल्सिस को डिस्चार्ज करते हैं. वो इम्पल्सिस एफरेंट नर्व फाइबर जो है वो हाइपोथैलेमस में लेके जाती है. हाइपोथैलेमस जो है वहाँ पे सुप्रा ऑप्टिक और सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई मौजूद होती है. सुप्रा ऑप्टिक एंड सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई जो है वो हाइपोथैलेमस में इफरेंट रोल प्ले करेंगे ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन के फॉर्म में. ऑक्सीटोसिन ट्रेवल करेगा ब्लड के थ्रू और वो फर्दर एक्ट करेगा यूट्रस के ऊपर. वो फर्दर यूट्रस कंट्रैक्शन कराएगा and cause the powerful contraction of the uterus that helps in the onset of labor. और वो फर्दर क्या करेगी, लेबर को जो है वो लेबर पेन जो हमें लेबर जो पेन जो है वो स्टार्ट होती है यूट्रस में, वो फर्दर कंट्रैक्शन जो है वो करेगी यूट्रस. तो अब ये फर्दर कंट्रैक्शन जो है वो जो करेगी, जो ऑक्सीटोसिन जो है वो आया, ये फर्दर जो ऑक्सीटोसिन है ये फर्दर और एक्ट किया इसने यूट्रस के ऊपर. फिर यूट्रस के फर्दर सेल जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं और पॉजिटिव फीडबैक गया है किसमें, हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस और मजीद हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा और वो हार्मोन आके फर्दर जो है वो एक्ट करेगा यूट्रस के ऊपर और फिर यूट्रस के और हार्मोन जो है वो बैक जाएगा. तो ये एक पॉजिटिव वे चलता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है वो एक्ट किया है जिसने प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर. इसके बाद अगर हम देखते हैं कि मेल में इसका क्या रोल है ऑक्सीटोसिन का, द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन. ओके, इट फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ sperm into the urethra by causing contraction of the smooth muscle fiber in reproductive tract, particularly vast difference. तो वेस्ट डिफरेंस के लेवल के ऊपर ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म करवाता है इनटू द यूरिथ्रा बाय कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर. वेस्ट डिफरेंस के लेवल के ऊपर जितने भी स्मूथ मसल फाइबर मौजूद होते हैं उनकी कंट्रैक्शन कराता है और रिलीज कराता है स्पर्म को यूरिथ्रा में. तो स्पर्म इजैकुलेशन में क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन का रिलीज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है. और इंक्रीज क्या करता है, वो इंक्रीज जो है वो वेस्ट डिफरेंस के लेवल के ऊपर स्मूथ मसल फाइबर्स के ऊपर एक्ट करके स्पर्म की इजैकुलेशन कराता है. तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है, मोड ऑफ एक्शन जी कपल्ड प्रोटीन की फॉर्म में होता है. डेट मीन के जो हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करता है तो वो जी कपल्ड प्रोटीन की फॉर्म में कर रहा है. यहाँ पे जी कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, दैट मीन ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और जो है वो एडीएच. तो ये क्या करेंगे, ये जहाँ पे इनका टारगेट सेल होता है, टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जाके एक्ट करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं और फर्दर उनका जो काम होता है कि उन्होंने प्रोटीन के चैनल को रेगुलेट करना है या फर्दर उन्होंने जो है वो स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करानी है. तो ये फर्दर फिर वो अपने एक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं. और इन जो जी प्रोटीन कपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर सकते हैं कि
कि जितने भी हार्मोन्स हैं स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, टायरोसिन नेचर के होते हैं। जो प्रोटीन नेचर के होते हैं वो सेल की टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और जी कपल्ड जी प्रोटीन कपल्ड जो है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं और वो एक्टिवेशन जो है वो फर्दर सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है in the form of contraction, in the form of running the channel of protein. And when the protein channel will run, then there will be the absorption of water as we see in the form of in the ADH role, and in the oxytocin role we see there is smooth muscle contraction. Okay, so this is in this lecture we study the posterior pituitary and their hormones and their action and their mode of action in which form, in the G protein coupled receptor form. Okay, हमने जो है इस लेक्चर में एडीएच की प्रोडक्शन को देखा था जो कि हाइपोथैलेमस से हो रही थी और हमने क्या इसके साथ ही हमने जो है वो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को देखा था। एडीएच जो है वो ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था एडीएच, और साथ में एडीएच जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था। ऑक्सीटोसिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क की इंजेक्शन करवा रहा था और साथ में जो है वो ड्यूरिंग लेबर जो है वो क्या करवा रहा था, कंट्रैक्शन ऑफ सर्विक्स करा रहा था। इसके बाद हमने इसका मोड ऑफ एक्शन देखा कि जी प्रोटीन कपल्ड के थ्रू होता है क्योंकि ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं। ओके ओके गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इनकी अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और अप्लाइड फिजियोलॉजी में हम थोरोली जो है वो देखेंगे कि जितने भी जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की अप्लाइड फिजियोलॉजी भी देखेंगे कि इनके हाइपर और हाइपोसिक्रेशन क्या करती है, और इसके बाद हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की भी हाइपर और हाइपोसिक्रेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा और ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।